Now, everybody give the heading working. Come on. The working is interesting. Come on. Give the heading working. दिया? हाँ इधर देखो. Look here. Now, this is the original array. पहले एक simple question का answer दो. In this original array, do you see numbers of more than one digit? So bucket sort can sort only one digit number, but radix sort can sort any number. ठीक है? Now in radix sort also we will use a two-dimension array called bucket, जैसे था वैसे पहले. ठीक है? Okay, now let's start from step number 3. अब तुम्हारा step number 3 read करो क्या है? Let step number 4 read करो. Step number let Max be the largest number in array X and let it passes its number of digits. इधर let max be the largest number in array X. तो बोला as per this example what is the value of max? 781, the largest number. ठीक है? Now 781 has how many digits? 3. तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे passes और उसके अंदर डाल देंगे the number of digits in max. तो max में 3 digits है तो passes का वैल्यू रहेगा 3. इतना समझा? Sure? अच्छा, अभी अगर passes का वैल्यू 3 है ना तो इसका मतलब ये है कि in radix sort we are about to have 3 passes, 3 executions, 3 repetitions ऐसा. ठीक है? Now this was step number कौन सा? 4 ना. अभी सबसे important step number 5 and step number 5 में सबसे important variable है divisor. अभी divisor का value क्या है? अभी ध्यान से सुनना, be very attentive. जब divisor का value 1 होगा ना तो उसका मतलब क्या पता है? उसका मतलब ये है कि we are going to sort these numbers as per the digit at units place. सुनते हो? थोड़ी देर के बाद डिवाइजर का वैल्यू हो जाएगा 10. तो then what we'll do, we'll sort these numbers as per the digit at tens place. थोड़ी देर के बाद डिवाइजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो then we'll sort these numbers as per the digit at hundreds place. ऐसा बराबर? ठीक है. अब वो for loop शुरू होगा. For read करो. digit equal to digit less than equal to digit. तो बोलो passes का वैल्यू 3 है ना तो digit will take which all values 1 2 3 तो 3 पास होगा. तो ये देखो digit का वैल्यू 1, divisor का वैल्यू 1, we start with pass number 1. So one execution of this for loop is one pass. Now in the beginning of the for loop पढ़ो ये क्या होगा? Initialize. तो सब buckets को खाली कर दो. Okay? अभी उसके बाद ये वो स्टेप है ट्रांसफरिंग एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिनल एरे टू बकेट. अभी इसमें ना पहले ना ये स्टेटमेंट देखो ये वाला. ऐसा ना एक सिमिलर स्टेटमेंट ना बकेट सॉर्ट में भी था. बट क्या तुम मेरे को बोल सकते हो ये स्टेटमेंट में एंड बकेट सॉर्ट के स्टेटमेंट में मेन फर्क क्या है? वेरी गुड. बकेट सॉर्ट में ना हमने इधर XOFI लिखा था. अभी हमने क्या लिखा है? ऐसा क्यों समझेगा? एंड वो डी को हमने इधर कैलकुलेट किया है. इसका मैं तुमको 2-3 एग्जीक्यूशन समझाऊंगा एकदम तुमको सिंपल लगेगा. व्हेन I is 0 व्हाट इज x of I? क्या 482 ना. डिवाइजर का वैल्यू 1 है. व्हाट इज 482 डिवाइड बाय 1? व्हाट इज 482 मॉड्यूलस 10? Don't expect me to explain that to you. 482 divided by 1 is 482. तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 482 हो गया. 482 मॉड्यूलस 10 2. तो d का वैल्यू क्या है? 2. What is 2 of 482? What is 2 of 482? Units place. बराबर ना? अभी है ना ये स्टेटमेंट रीड करो बट रीड करते वक्त रिप्लेस x of I रिप्लेस d. insert 482 into bucket of 2. So see what you are doing is you are performing insertion as per the digit at units place. अच्छा अभी ये मत बोलो तुम ये for loop में हो तो ना who will be the next x of I? अरे बोलो ना.
पहले 4 into 2 हो गया ना. नेक्स्ट क्या है बोलो. What is 246 divided by 1? 246. Modulus 10. 6. Insert. 246 into bucket of 6. Insert 246 into bucket of 6. Now my last explanation. Now who is the next x of I? 13. What is 13 divided by 1? 13. Modulus 10. 3. Insert. 13 into bucket of 3. Insert 13 into bucket of 3. So see, insertion is taking place as per units place. चलो फटाफट बोलते हैं. Insert 195 in bucket of 5. Insert 549 into bucket of 9. Insert 781 into bucket of 1. Insert. अच्छा एक मिनट ये देखते हैं जरा. ये 9 है ना. What is 9 divided by 1? What is 9 modulus 10? हाँ? 9 modulus 10 9 होता है. Modulus operation में if the first number is lesser than the second number, the answer is the first number. ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. तो 9 modulus 10 कितना होता है? 9. तो insert 9 into bucket of 9. All right. Insert 206 into bucket of 6. तो ये आ गया इधर बराबर. ये हो गया ना. So we have transferred all the elements from where to where? From original array to bucket. अभी ये कमेंट क्या बोलते हैं? ट्रांसफरिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम. तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे. देखो दिस कोड इज एग्जैक्टली सेम एज बकेट सॉर्ट. देखो बराबर ना. तो ये कोड मुझे तुमको सिखाने का जरूरत भी नहीं है. अभी आई वैल्यू लेगा कहां से कहां तक? 0 to 0 to 9 यानी ये 0 to 9. And every time we will insert elements from bucket of I to the array X. तो सच में समझा तो मेरे को बोलो अभी array X में at the end of pass one array X में इधर क्या आएगा बोलो? 781. हाँ फिर 482. हाँ फिर 13. फिर 195. फिर 246. हाँ फिर 206. फिर 549. फिर 9. मेरे को बोलो is this array sorted? मैं बोलूंगा yes. Very good. According to the digit at units place. देखो ध्यान से 1 2 3 5 6 6 9 9 ऐसा. इतना समझा? एक स्टेटमेंट में भूल गया इधर. जरा एक और स्टेटमेंट इधर प्लीज ऐड कर लो. सॉरी इधर एक मिनट. जस्ट वन करेक्शन. एवरीबॉडी लुक. वन करेक्शन. इधर है ना ये फॉर लूप हो जाएगा ना. उसके बाद एक और स्टेटमेंट आएगा. डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू 10 एंड देन दिस फॉर लूप विल. ये वाला फॉर लूप है ना ये. देन दिस फॉर लूप विल टर्मिनेट. So just add this one statement. Sorry, I forgot. Divisor is equal to divisor into 10. Just add that statement. ये देखो this statement, look, this statement is not under this for loop. समझा ना? अब इधर देखो. अब मैंने ना तुमको इधर तक सिखाया, इधर तक. ये देखो यहां तक. अब इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? Divisor is equal to divisor into, and then divisor is going to take which value? 10. अभी divisor का वैल्यू क्या है? 1. ठीक है. तो अभी ना till here pass 1 of radix sort is over. What is over? Pass 1 of radix sort. अब क्या करो? ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कॉपी करो. Working is not over. अभी तक pass 1 is over. Start. Come on, hurry. Fast, hurry.
ठीक है, सुनो अभी पास 3 तुमको खुद से करना है, तो पास 2 आई एक्सप्लेन यू, पास 3 तुमको खुद से करना है। ये देखो अभी, ये देखो डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू 10, तो डिवाइजर का वैल्यू बोलो 10, देन कंपाइलर गोज टू डिजिट प्लस प्लस, ये देखो ये ब्रेस डिजिट प्लस प्लस पे जाएगा, डिजिट प्लस प्लस ऊपर, तो डिजिट क्या वैल्यू लेगा 2, तो डिजिट 2, तो इसका मतलब नाउ विल स्टार्ट विद पास 2, ठीक है। जैसे ही तुम पास 2 में आते हो, वेरी सिंपल, पास 3 को कैसे करना है, सुनो ये स्टेटमेंट लिखो, इनिशियलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तुमको इसका इंपॉर्टेंस समझेगा उस स्टेटमेंट का, इनिशियलाइज और बकेट्स टू एम्प्टी। तो बिना भूले तुमको अभी फिर से नया बकेट्स लेना है, यानी पुराना वैल्यू उसमें नहीं होना चाहिए, वरना फिर मिस्टेक हो जाएगा तुम्हारा। सो इनिशियलाइज ऑल द बकेट्स टू एम्प्टी, ठीक है। सुनो सुनो वेट, अभी फिर से ट्रांसफर एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिनल एरे टू बकेट, फिर से विल गो थ्रू द ओरिजिनल एरे x, बट अभी एरे x ऐसा दिख रहा है, ऐसा। सो व्हेन i इज 0, बोलो हु इज x ऑफ i, व्हाट इज डिवाइजर, ध्यान दो 781 डिवाइड बाय 10 कितना, 78, एक्चुअली होता है 78.1 ना, बट हम करेंगे इंटीजर डिवीजन, तो जो पैरेंथेसिस का पोर्शन है ना वो 78 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज 78 मॉड्यूलस 10, 8 है ना, तो d का वैल्यू 8। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, इंसर्ट, नहीं रिप्लेस करके इंसर्ट 781 into bucket of 8। Did you realize हमने क्या किया, हमने इंसर्शन किया as per the digit at tens place। अरे 781 का टेंस प्लेस 8 है ना, समझा। चलो स्पीड पकड़ो थोड़ा, उसका नेक्स्ट 482 है। व्हाट इज 482 डिवाइड बाय 10, मॉड्यूलस 10, इंसर्ट 482 इनटू बकेट ऑफ 8, तो 482 इधर आया बराबर। नाउ माय लास्ट एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज 13 डिवाइड बाय 10, ये 13 है, 13 डिवाइड बाय 10, what is 1 modulus 10, so insert 13 into bucket of, bucket of 1 में आना चाहिए, तो 13 आएगा bucket of 1 में, क्योंकि उसका tens place 1 है। चलो insert 195 into bucket of 9, all right, insert 246 into bucket of 4, insert 206 in, एक मिनट 206 करके देखते हैं। What is 206 divided by 10? 20. What is 20 modulus 10? 0. So insert 206 into bucket of 0. All right. चलो 549 किधर आएगा? 4. तो 549 4. एक और 9. What is 9 divided by 10? 0. What is 0 modulus 10? तो 9 will be inserted into bucket of 0, और वो करेक्ट है क्योंकि 9 का टेंस प्लेस 0 है, समझा। अच्छा, उसके बाद ये इतना पोर्शन हो गया इधर तक। अब ये होगा ये, तो ये तो तुमको मालूम है ना, स्ट्रेट इधर कॉपी करेगा, तो बोलो फिर मैं इधर क्या लिखूं, फिर 13, फिर 246, फिर 549, फिर 781, फिर 482 एंड फाइनली 195। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रियलाइज करोगे, नाउ ऑल द नंबर्स आर सॉर्टेड एज पर द डिजिट एट, बराबर। आप तुमको खुद से कुछ करना है, इसे ध्यान से सुनो। वेट, सुनो, हाई मत करो। अभी तुम क्या करोगे, लाइन के नीचे जो भी है ना सब कॉपी करोगे, सुनो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पास 3 चालू होगा। पास 3 में डिवाइजर क्या वैल्यू लेगा, 100 एंड डिजिट वैल्यू लेगा 3, तो तुमको 103 लिखना है, पास 3 लिखना है, बराबर। फिर से पूरा बकेट खाली रहेगा, फिर से तुमको ये बकेट ड्रॉ करना है, ये एरे ड्रॉ करना है। बट अभी एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट x ऑफ i इन पास 3, 206 ना, तो ये ऐसा होगा
206 डिवाइड बाय 100 कितना? हाँ, मॉड्यूलस 10 समझ में आ रहा है ना? 206 डिवाइड बाय 100 कितना? 2 एक्चुअली होगा 2.06 पर इंटीजर डिवीजन की वजह से 2 होता है. व्हाट इज 2 मॉड्यूलस 10? तो यू विल इंसर्ट 206 इनटू बकेट ऑफ 2 ऐसा. समझा? तो तुमको पूरा पास 3 भी अभी कंप्लीट करना है पूरा. तो पूरा वर्किंग कंप्लीट करो. स्टार्ट. You'll get only 3 minutes for that. Fast. ये लाइन के नीचे है. स्टार्ट करो. लाइन के ऊपर का मत लिखो, लाइन के नीचे. तो पास 3 में इधर आएगा 206, इधर आएगा 9, इधर आएगा 13, 246, 549, 781, 482 and 195. So पास 3 में देखो बकेट ऐसा दिखेगा, बकेट ऐसा दिखेगा और बस इसको फिर तुम अगर इधर कॉपी कर लोगे तो द एंटायर एरे विल गेट सॉर्टेड. तो फिर इधर आएगा 9, चलो 9 के बाद 13, 195, 206, 246, 482, 549, 781. So the entire array got sorted. बराबर. ये पूरा तुमने वर्किंग के अंडर किया ना. So working is over. Now leave a line and give the heading efficiency. Come on.
leave a line and give the heading efficiency. Point number 1. Again you will understand efficiency after we do algorithm analysis, but it is simple, तो लिख के रख दो, समझ में आ जाएगा. लिख. Point number 1. लिख. The loop required to transfer elements. The loop required to transfer elements from original array to bucket, executes n times. Full stop. This loop is inside an outer loop which executes passes number of times. Point number 2. Hence, the complexity of radix sort is ये देखो, big O of passes into n, where n is the number of elements and passes is the number of digits in the largest element. ठीक है, वो आंसर हो गया, पर उधर एक चीज सिखाना है मुझे. बोलो पासिस क्या है? पासिस का क्या मतलब है? पासिस इट इज अ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट एलिमेंट. तो अपने में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन था? उसमें कितना डिजिट्स था? 3. बराबर. अभी तुम्हारा जनरल आइडिया का लास्ट पॉइंट देखो. जनरल आइडिया का लास्ट पॉइंट उधर ना तुमने ऐसा लिखा था, radix sort can be used only for those numbers which have क्या? Same sign का मतलब either all positive or all negative. अभी ये ऐसा क्यों? सुनो इधर देखो. समझो ये जो array है ना, array ध्यान से सुनना. समझो इसमें एक नंबर है, समझो इसमें एक नंबर है 246, हाँ, और दूसरा नंबर है -489, ऐसा कुछ. हाँ, तो मेरे को सॉर्टिंग के बाद कौन सा नंबर पहले आना चाहिए? 246 या -489? ऑब्वियसली ना, वो नेगेटिव है तो पहले आना चाहिए, यानी वो लेसर वैल्यू है. बट रैडिक्स सॉर्ट क्या करेगा पता है? इसको इसके बाद डालेगा, इसको इसके बाद डालेगा. बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर तुम थोड़ा ध्यान दे रहे थे तो रियलाइज करोगे रैडिक्स सॉर्ट है ना, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कंपैरिजन करता ही नहीं है. रैडिक्स सॉर्ट का जो पूरा वर्किंग है ना, वो पूरा मॉड्यूलस पे बेस्ड होता है. तो रैडिक्स सॉर्ट को क्या लगेगा? रैडिक्स सॉर्ट को लगेगा कि 489 इज अ बिगर नंबर देन 246, तो वो इसको इसके बाद ही डालेगा. So when you do radix sort, either all numbers should be positive or all numbers should be negative. वरना काम नहीं करेगा. ये समझा? अच्छा, भी एक और स्टेटमेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, ध्यान से सुनो. Moreover, हाँ पढ़ो क्या? It should be preferably used for those numbers which have क्या? पहला बात तो ये कि देखो, तो मैंने preferably बोला है, तो ऐसा नहीं कि तुम ऐसा मत करो, बट बोला preferably ऐसा करो. अब प्रेफरेबली क्या करो? सुनो इधर देखो. वो बोलता है कि रैडिक्स सॉर्ट है ना, ये तुम ऐसे नंबर्स के लिए यूज करो जिसमें 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है. बट ऐसे नंबर्स के लिए यूज मत करो जिसमें 7-7 डिजिट है, 8-8 डिजिट है. ऐसा तुमको पहले स्टेटमेंट समझा क्या?
ना तो क्वेश्चन ऐसा क्यों, तो अगेन तुमको ये अच्छे से तब समझेगा जब हम एल्गोरिथम एनालिसिस करेंगे, बट फिर भी अभी तुमको समझ में आएगा। अभी याद करो बोर्ड पे मैंने एक फॉर लूप लिखा था, स्टेप नंबर 5। वो स्टेप नंबर 5 जरा देखो। फॉर डिजिट इक्वल टू 1, डिजिट लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी डिजिट लेस देन इक्वल टू पासेस, डिजिट प्लस प्लस। हाँ अभी इधर देखो, लो क्या समझो, you are using radix sort to sort numbers of 8 digits. You are using radix sort to sort numbers of क्या? 8 digits. मेरे को बोलो वो जो लूप है ना, for digit equal to 1, digit less than equal to passes, digit plus plus, वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 8 बार ना, समझा? अब एक सिंपल बात है, भले तुमको एल्गोरिथम एनालिसिस नहीं भी आता तो भी सिंपल बात है, अगर वो लूप 8 बार एग्जीक्यूट होगा तो वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है रेडिक्स सॉर्ट में कि अगर नंबर्स बड़ा है तो वो वाला जो लूप है वो ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगा और उतना ही ज्यादा वो टाइम लेगा, तो प्रेफरेबली वो यूज मत करो। समझा? ठीक है, अभी एक लाइन छोड़ो, एफिशिएंसी का एक लाइन छोड़ो, तो रेफर PN 104 फॉर प्रोग्राम, रेफर PN 104 फॉर प्रोग्राम। सुनो, ये सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। द प्रोग्राम ऑफ रेडिक्स सॉर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ program of bucket sort and algorithm of radix sort. The program of radix sort is a combination of number 1 program of bucket sort and number 2 algorithm of, ये दोनों चीज मैंने तुमको सिखाया है। So I don't need to explain you the program of radix sort except one thing, अब प्रोग्राम निकालो, खाली एक चीज तुमको बताने का है। उधर देखो तुमको एक कमेंट दिखेगा, पेज नंबर 105 पे का कमेंट दिखेगा, फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे। हाँ तो कमेंट खुद ही बोलते हैं वो क्या करेगा, और उसके जो लॉजिक है ना वो देखो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने किया था। फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे, उसके नीचे जो लॉजिक है ना वो लॉजिक तुमको सिलेक्शन सॉर्ट में भी दिखेगा, तो वो लॉजिक में तुमको सिखाऊंगा नहीं, खाली तो साइड में लिख दो सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट, सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ अब वो लॉजिक क्या करेगा,